بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے، کن پیغمبر کی قوم پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ سوال ہے، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب ہے، ایک ہیبت ناک چمک اور کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ سوال ہے، مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب ہے 3 ماہ۔ سوال ہے، نوح کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے رونے والا۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کی نماز کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب ہے نماز فجر کی سنت کے بارے میں۔ کون سی سبزی کا استعمال بانجھ پن کے مرض کے لیے مفید ہے؟ بھنڈی، بند گوبھی۔ سوال ہے، لا يدخل الجنت قاطع، اس حدیث مبارکہ میں قاطع سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ نماز تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو مکہ کے بڑے خوش پوشاک اور شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینہ میں تبلیغ اس شان سے کرتے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکا لیا کرتے تھے۔ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آب سلطانی کس سائنسدان نے تیار کی؟ جواب ہے جابر بن حیان۔ سوال ہے، اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ جواب ہے حضرت زبیر بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ سوال ہے، اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ جواب ہے لات کی۔ سوال ہے، پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟
जवाब है खुलफाए राशिदीन। सवाल है हजर अस्वद नस्ब करने के मौके पर किस बात पर झगड़ा हुआ? जवाब है हर कबीला ये सआदत खुद हासिल करना चाहता था। इस कशमकश में 4 दिन तक कोई फैसला ना हो सका, हत्ता कि तलवारें निकल आईं। 5वें दिन एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम में आए उसको सरदार मानकर उसके फैसले पर अमल किया जाए। सवाल है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किस फन के माहिर थे? जवाब है फने खताती के। सवाल है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद मक्का में औरतों में किसने इस्लाम कबूल किया? जवाब है फातिमा बिनते खिताब, हजरत उमर की बहन ने इस्लाम कबूल किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश के बाद किसने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को उठाया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त नबूवत क्या थी? जवाब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 48 बरस थी। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली गैबी आवाज सुनाई दी थी वो क्या थी? जवाब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सतर को ढांप। सवाल है रसूलों की तादाद आपके ख्याल में कितनी है? जवाब है 313। सवाल है सूरज गुरूब होने से रोकने वाला मौजज़ा कब पेश आया? जवाब है हजरत यूशा के जरिए बलकान के हुक्मरान बाराक या बलाक से जंग के दौरान अल्लाह पाक का मौजज़ा रूनुमा हुआ, सूरज को गरूब होने से रोक दिया था। सवाल है गज़वा ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? जवाब है 70 मुसलमान शहीद हुए थे। सवाल है कुरान मजीद में जन्नत के खजान का क्या नाम है? जवाब है रिजवान। किस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहा गया है? सूरह अल अहज़ाब में। किस नबी की उम्मत पर आसमान से आग बरसाई गई? हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम की उम्मत आप अलैहिस्सलाम की गुर्बत और शराफत की वजह से आप अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानती थी और आपके मौजज़ात को देखकर आप अलैहिस्सलाम की कौम यही कहती थी कि ये सब जादू है। फिर आपकी कौम पर अल्लाह का अजाब आया और आसमान से आग बरसाई गई। आसमान से ये आग सोमवार के दिन बरसाई गई थी। कौन सा तेल नाफ में लगाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता? जैतून का तेल। सवाल है क्या आप जानते हैं कयामत के दिन सबसे पहले लिबास किसको पहनाया जाएगा? जवाब है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को लिबास पहनाया जाएगा।
سوال ہے نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ جواب ہے 5ویں۔ سوال ہے وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب ہے وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے۔ الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اسلامی ریاست کا آئین کیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ سوال ہے بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ زعفران کی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال ہے حضرت اماں حوا کی پیدائش کا دن کون سا تھا؟ جواب ہے یوم عاشوراء 10 محرم الحرام۔ سوال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب ہے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس زیب تن کرتے تھے؟ جواب ہے کرتا اور تہبند۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ مصر میں۔ سوال ہے سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے کان چھیدے گئے تھے اور اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ سوال ہے شروع میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ جواب ہے شروع میں 2 نمازیں فرض تھی۔ سوال ہے غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟
जवाब है लश्कर कुफ्फार अंधा होकर भाग गया। सवाल है कौम समूद की तबाही के बाद जो लोग बच गए वो कहां आबाद हुए? जवाब है फलस्तीन में। सवाल है कि सहाबी की मां और बीवी का नाम एक ही था? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कितने जुम्मे अदा किए? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुम्मा नमाज अदा की, क्योंकि जुम्मा हिजरत के बाद शुरू हुआ। इसके बाद आप 10 साल हयात रहे, इसलिए इतने जुम्मे नमाज बनते हैं। खाना काबा में जो बुत नसब थे उन्हें किसने गिराया? आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब है रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है शाम को कौन बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरियों का दूध दोग कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता? जवाब है आमिर बिन फहरा। सवाल है गज़वा बदर में शैतान को भागते हुए किसने पकड़ा था? जवाब है गज़वा बदर में शैतान को भागते हुए देखकर हारिस बिन हश्शाम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे पकड़ा था। सवाल है कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 11 मर्तबा। सवाल है कि सूरत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है? जवाब है सूरह अंबिया में। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तख्लीक के बाद रूह मिलते ही सबसे पहले अपनी जबान से कौन सा लफ्ज निकाला? जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब शजरे ममनुआ का फल खाया तो अपने आप को किस हालत में पाया? बरहंगी की हालत में। सवाल है हजरत दाता गन बख्श जिस वक्त बरे सगीर पाक को हिंद में आए तो आपके हमरा कितने आदमी थे? जवाब है 2। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहन और बहनोई का नाम बताएं जिनके साथ गुफ्तगू करके आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहन का नाम हजरत फातिमा और बहनोई का नाम हजरत सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो है। सवाल है ताबूत सकीना किस लकड़ी का बना हुआ था? जवाब है शमशाद की लकड़ी का बना एक संदूक था। सवाल है बैतुल मुकद्दस की फतह के वक्त चाबियां किस सहाबी के हवाले की गई?
जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के। अल्लाह ताला ने जमाने की कसम किस सूरत में खाई है? सूरह अल असर में। किस बच्चे को पालना और परवरिश करना नाजायज है? आजकल अक्सर बे औलाद हजरात दूसरों की नाजायज़ औलादें किसी हॉस्पिटल और रिफाही इदारे से हासिल करके इनकी परवरिश करते हैं, मगर कुछ लोग इस बात को हकारत की नज़र से देखते हुए एतराज़ करते हैं कि ना जाने किसका नाजायज़ खून है, जाने किसका गुनाह है। तो इस तरह की बातों से गुरेज करते हुए इस्लामी तालीमात के मुताबिक बोलना और सोचना चाहिए कि अगर कोई बच्चा नाजायज़ अमल की वजह से पैदा हुआ है तो इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। जिना करने वाला और जिना करने वाली गुनाह के मुर्तकिब होते हैं, इसलिए नाजायज अमल के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को पालने में शरन कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस अनवान से मुस्तकिल शोबा या इदारा कायम करना शरन दुरुस्त नहीं है ताकि लोगों को जिसारत ना हो। सवाल है, ओहद से क्या मुराद है? जवाब है पहाड़। सवाल है, अफजल जिक्र से क्या मुराद है? जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के प्याले कितने थे और किस किस चीज के थे? जवाब है 2 प्याले थे, एक गज का और दूसरा लकड़ी का। पहले नबी का नाम बताएं जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जेल खाना जात किसकी इजाद है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह रूम के नाजिल होने के बाद किसके साथ शर्त लगाई थी? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबी बिन खल्फ के साथ शर्त लगाई थी। सवाल है, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो की तिलावत सूरह मरियम के जवाब में किसने कहा था? खुदा की कसम ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग के पर तो नूर है। जवाब है शाह नजाशी ने। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारात और पाकदामनी के बारे में कुरान गवाह है, इसमें जरा भी शक लाने के बारे में शरअ का क्या हुक्म है? तमाम फुक़हा उम्मत इस पर मुत्तफिक हैं कि ऐसा शख्स काफिर है। सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरियाए फरात में कश्ती से किसने फेंक दिया था? जवाब है उनकी कौम ने। सवाल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा का खिताब किसको दिया था? जवाब है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, दुनिया में सबसे खूबसूरत मस्जिद कहाँ है और इसका नाम क्या है? जवाब है तुर्की के दारुल खिलाफा इस्तांबुल में मस्जिद सूफिया। सूरत अल हजरात में किन आदाब की तालीम दी गई है?
जवाब है आदाब माशरत। सवाल है तूफान नूह अलैहिस्सलाम का आगाज कहां से हुआ और कितने अरसा तक रहा? जवाब है मस्जिद कूफा के सहन से शुरू हुआ और 150 दिन रहा। सवाल है कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह आया है? जवाब है कुरान की सूरह अल मुजादला में अल्लाह का नाम हर आयत में दोहराया गया है। कयामत को जो देखना चाहे वो इन सूरतों को पढ़ ले। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद किन सूरतों से थी? सूरह तकवीर, सूरह अनफितार, सूरह अनशिकाक। सवाल है किसके ईमान लाने पर सहाबा कराम ने पुरशगाफ नारा तकबीर बुलंद किया? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने पर। कौन सी कौम आंधी आने की वजह से हलाक हुई? कौम आद। सवाल है क्या आप जानते हैं कि अहले दोजक में से हल्का अजाब क्या होगा? सवाल है क्या आप जानते हैं कि अहले दोजक में से हल्का अजाब क्या होगा? जवाब है 2 जूतियां और 2 तस्मे आग के पहने होगा। सवाल है मैं नमाज पढ़ रहा था कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने नमाज तोड़कर दरवाजा खोला, अब मेरा क्या कफारा होगा? जवाब है बिला किसी शदीद ज़रूरत के नमाज को तोड़ना जायज़ नहीं है। अगर आपने किसी दस्तक देने की वजह से दरवाज़ा खोलने के लिए नमाज तोड़ दी तो अगर कोई शदीद ज़रूरत नहीं थी तो ऐसा करने की वजह से आप गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं और आप पर इस गुनाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करना लाजिम है, अलबत्ता अलग से कोई कफ़ारा लाजिम नहीं है। वहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा को शहीद किया? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा फरमाया? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। सवाल है इस कायनात का पहला गुनाह क्या था? जवाब है इस कायनात का पहला गुनाह ना कुफर था ना शिर्क था, पहला गुनाह यह था कि मैं इससे बेहतर हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश के लिए जब आम माफी का ऐलान किया तो कहा कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसे कत्ल ना किया जाए। ये बताएं और किस शख्स के घर में पनाह लेने वाले को भी कत्ल ना करने का हुक्म दिया गया? हकीम बिन हजाम के घर में पनाह लेने वाले को भी कत्ल ना करने का हुक्म दिया गया।